Good morning, everyone. Am I audible too? Yes, Yes, sir. sir. Good Yes, morning. sir. Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Good sir. morning. Okay. Before starting the lecture, let me clear you certain things regarding your assignments. Listen, all of you. See, actually, on a daily basis, I'm giving you some problems as a homework. Okay. That homeworks may be take, may not be take. Okay, randomly. I will pick a random student. I will just go through it. Okay. And regarding homework, important thing is that I need submission from each and every student. It is for assignment also, and as well as it is for the homework also. But regarding homework, let me tell you guys कि I will check होमवर्क रैंडमली. ओके, किसी भी एक स्टूडेंट का कौन सा भी एखादा होमवर्क मैं चेक करूंगा. अगर मुझे लगा कि that student have not solved it correctly, so definitely I will take a note of that. Okay, it's about the homework. Fine. And another important thing about your assignment, I have clearly mentioned wherever it is homework, then it's mentioned as the HW or clearly in a full form homework. Okay. If another thing is that it's the assignment. Okay. Assignment is also clearly specified. Okay. Till now, only one assignment is given to you. Okay. Assignment one, resultant of concurrent force system, resultant of parallel force system and general force system. Okay, ये एक असाइनमेंट आपको दिया है. इट इज हैविंग अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन, बट दैट असाइनमेंट विल बी चेक थ्रूली. हर एक स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक होने वाला है. ओके, होमवर्क रैंडमली चेक होगा एंड असाइनमेंट है हर एक स्टूडेंट का चेक होने वाला है. ओके, and for the assignment, I have increased the deadline also. You can submit it till the Sunday. Okay, till the Sunday evening you can submit that assignment. Okay, so I hope I have given you enough time. Already 1 week may be 7 to 8 students have submitted in 1 week. चलो ठीक है, it's quite थोड़ा number of problems ज़्यादा है and time is less, so that's why I extended the deadline. So you can submit it till the coming Sunday. Fine. I hope it is clear to everyone, clear instructions regarding the homework and assignment. I got you difference between assessment of homework and your assignment. Assignment हर एक स्टूडेंट का चेक होगा, होमवर्क रैंडमली चेक होगा किसका भी. Clear? Yes, sir. Okay. About all the students who have joined the class, let me give one instruction regarding your attendance. If some student due to some personal reason, due to some issue, uh, not possible to attend the lecture, you have to inform in advance. Lecture miss होने के बाद में नहीं बताना है. Okay, if there is any function at your home, if there is any certain kind of thing is there, okay, तो lecture miss करने के पहले नहीं बताना है. ओके, चलो ठीक है, इमरजेंसी है तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई हैव फाउंड सम स्टूडेंट्स के एरिया, लेकिन इतना कुछ वैलिड रीजन वाज देयर, बट वो पहले भी बता सकते थे. यू हैव टू टेक केयर दैट कि बिफोर मिसिंग द लेक्चर यू हैव टू इन्फॉर्म इन एडवांस टू मी ऑल्सो एंड टू योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फैकल्टी ऑल्सो. केमिस्ट्री का लेक्चर अगर आपको लग रहा है कि आज मिस होने वाला है मेरा कुछ तो ड्यू टू सम रीजन, सो इमिडिएटली पहले आपको इन्फॉर्म करना है, वो फैकल्टी को भी इन्फॉर्म करना है एंड एज एन क्लास एडवाइजर ऑफ योर डिवीजन. ओके, तो आपको मुझे भी इन्फॉर्म करना है. आई होप. चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को अभी.
and coming to the next point, see guys, so actually ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो रिजल्टेंट का जो टॉपिक था, टॉपिक ऑफ रिजल्टेंट ऑफ व्हाट कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इसको हम लोग ने शॉर्ट में सीएफएस बोला था, सीएफएस, पीएफएस एंड जीएफएस। ओके, ये तीनों में से पैरेलल फोर्स सिस्टम बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि पैरेलल सिस्टम का एक अलग सा एक टाइप होता है। ओके, उसमें जो वे ऑफ शोइंग फोर्स इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, थोड़ा अलग मेथड से वहाँ पे फोर्स का रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। ओके, तो उसका एक अलग छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल अभी यहाँ पे दे देता हूँ कि वो कैसे एग्जाम को मेथड होता है उसको शो करने का। ओके, तो आपको एक फटाक से आइडिया आ जाएगा ना, वो चीज़ हम लोग मतलब वो क्या होता है कंसेप्ट, तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ देयर आफ्टर, अभी पहले ठीक है। ओके, जब भी उसका एक आधा एग्जाम्पल देखेंगे या फिर उसके जो टेक्निक्स हम लोग एक्चुअली देखने वाले हैं गाइस ये। ओके, तो क्या बोलेंगे रे आपको इन दैट एग्जाम्पल ना, यू विल बी आस्क्ड if this is a horizontal beam over there na, okay, so they may be given you forces acting like this, okay, and one force is acting like this, okay, and here they may be give you the force system like this. Okay, so this kind of force representation method is nothing but the uniformly distributed load. Okay, there are different types of load guys, listen here, there are different types of load. ओके, एक जो लोड है अभी हम लोग इन द थर्ड लेक्चर, मतलब ये जो न्यू टॉपिक है जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ये डिटेल में देखने वाले हैं, आपको शॉर्ट में बता दूंगा दिस इज नथिंग बट द पॉइंट लोड। ओके, उसके बाद में आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एक टाइप होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, उसके बाद में आता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ओके, ये यूनिफॉर्मली लोड वैरी होते जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि यूवीएल यूनिफॉर्मली वैराइंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि दिस आर द टाइप्स एंड यू हैव टू डील विद इट। तो इसके साथ डील कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व इसके प्रॉब्लम इफ इट इज आस्क्ड इन द पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो श्योरली तो जो अपना थर्ड लेक्चर होगा ये वाले टॉपिक का, तो उसके बाद आपको ये फोर्स को, अच्छा आवाज, ये फट्टे फट्टे का मतलब क्या होता है बेचारे, आई डिडंट गेट। ओके सर सर जैसे माइक फटा हो ना वैसी कुछ आवाज आ रही है आपकी, एकदम क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मतलब एटलीस्ट समझ तो आ गया ना क्या बोला मैं। हाँ सर। हाँ ठीक है, लेट मी यूज माय अनदर माइक्रोफोन, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। ओके, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट इनटू द नोटिस। अभी आवाज सही आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Okay, okay. Thank you, Prathamesh. Sandeep. See, actually, I should say thanks to your generation, your division. I'm to say all the students that see we are not that much technology competent. Okay, like you are the smart guys, and you know how to use the technology, and we are quite less compatible than you. Okay, so it's great that you are cooperating to us and you are giving the suggestions like this. Okay. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट यू आर डिस्कसिंग, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। तो ये टाइप के जो लोड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोड, तो वो हम लोग अभी थर्ड वाले लेक्चर में देखने वाले ये नए वाले टॉपिक में। तो उसके बाद में ये अगर इफ दिस इज एडिंग इन पीएफएस, ये पीएफएस में या फिर अपने किसी जीएफएस में इंक्लूड हो गया, तो वी विल बी एबल टू टैकल दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स आल्सो। ओके, हाँ चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ कि आज हम लोग को क्या सीखना है।
So guys, today we are going to learn equilibrium of coplanar forces, nothing but the introduction to equilibrium of forces. Okay, see. Simply let me tell you, is nothing but the equilibrium. Okay, equilibrium क्या होता है? Let me tell you in a short, and we'll jump to the concept and start to solve the numerical. Okay, हाँ, तो equilibrium मतलब क्या होता है बेटा? कि whenever the system simply the in a what we can say in a general language we can say the system is in a balance. Okay, देखो मतलब क्या होता था जब भी हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो टॉपिक देखा ना, इन फर्स्ट टॉपिक, ओके, तो वी हैव लर्न दैट कि जस्ट अ सेकंड राइट, हाँ चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इन फर्स्ट टॉपिक वी हैव सीन दैट कि इफ एनी काइंड ऑफ फोर्स सिस्टम इज गिवन तो हम लोग उसको एट द एंड क्या करते थे, एट द एंड we were showing the resultant. Okay, resultant was having a great method with us. Okay, resultant हम लोग उसका शो करते थे कोई भी एक फोर्स सिस्टम का. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिजल्टेंट हम लोग को है ना, रिजल्टेंट विल नॉट बी देयर इन द पिक्चर. ओके, नाउ योर सिस्टम इज इन बैलेंस. व्हेन सिस्टम इज इन बैलेंस, बैलेंस तो मैं अभी इन जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. तो when system is in balance, so क्या होगा रे, in short, for example the standalone building is there. Okay, standalone building भी रहेगा तो इसका मतलब क्या है, each and every component, अभी ये for example ये बिल्डिंग है, so like windows and all the things of the building. Whatever you can get it just. Okay, so in this building, okay, so there are a lot of beams, columns. Okay, each and every beam is under some load. Okay, column is also having some under acting under the application of certain load. मतलब क्या, load is nothing but the forces. Okay, after application of all forces on the particular beams. Okay, particular beams, particular columns. ये आपका जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग हिलते रहता है क्या? नो ना, इट्स इन अ बैलेंस कंडीशन. ओके, सो what we can say at the end कि after application of all the forces, particular type of, हर एक बीम का खुद का भी एक लोड रहेगा, है ना, हर एक बीम का लोड रहेगा, कॉलम का लोड रहेगा. ओके, एंड whenever the building is designed, building is comes into the application, so ये क्या करेंगे रे, हर एक वो लोग on each and every floor, ground floor से लेकर टॉप फ्लोर, टेरेस हो गया, तो देयर आर सम shift on the floor. ओके, मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर लोड रहेगा, people staying in that building, so they also carry some of their weight. So in short, there is a lot of forces are acting in that building on the each beam and column and all. Still building is in a steady condition. Okay, तो ऐसे नहीं होता ना कि बिल्डिंग, अरे क्या हो गया, तो बिल्डिंग का कैपेसिटी 5 लोगों का, तो एक छठवा इंसान आ गया तो बिल्डिंग हिलने लग गया, है ना. घर का कैपेसिटी 5 लोगों का है तो 6 पर्सन कम्स इनटू द होम, 6 गेस्ट कम्स इनटू द होम, so your home start vibrating. Okay, ऐसे तो नहीं होता ना. Okay, so the system is designed, मतलब your house, home, this building is designed in a way that it is in a balanced condition. It is in a balanced condition. So in the engineering mechanics language, balance मतलब क्या होता है? What does this mean, balance? Okay, तो balance तो जनरल टर्म हो गया, लेकिन उसका हम लोग करें क्या, है ना? How we will deal while studying engineering mechanics? Okay, very much simple. हम लोगों ने क्या क्या देखे थे? We have just learned two types of forces. Whenever we are talking about forces acting in one plane, we have just deal with the sum of horizontal force.
Okay, we have deal with the sum of vertical force. Okay, if we are studying about 3D force system, then we have to deal with the sum of forces acting in a third plane also. Okay, मतलब third plane रहेगा आपका, उसमें जो act होने वाले, मतलब in a along x axis, along y axis, along z axis, तीनों axis के along जो forces consider होने वाले, that we have to take care for the this is for 2D and this is for 3D. Okay, these forces का हम लोग को क्या करना है, we have to take care of that. Okay, तो ये हम लोगों ने क्या किया था, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट किया, वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट किया, तो रिजल्टेंट निकाला था. यहाँ पर रिजल्टेंट नहीं. ओके, तो यहाँ पे एट द एंड व्हाट विल हैपन, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी 0. Okay, then and then only your system will be in a balance. Okay, sum of vertical force will be 0, sum of forces acting in a z direction will be 0. Okay, and sum of moment about any point, okay, about any point is equal to 0. Then and then only your system will be considered as a balance. Balance मतलब क्या? Here the technical word in the engineering mechanics, it is nothing but the equilibrium. ओके, बेसिक क्लियर हो गया आपको इसका, है ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए. कंडीशन 1, sum of horizontal force is equal to 0, sum of vertical force is equal to 0, sum of forces acting in a z direction is equal to 0, and sum of moment about any point is equal to 0. ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो देन the system is into the equilibrium condition. Okay, clear to everyone? मैं proceed ahead. Yes, sir. Okay, ठीक है. Now. Okay, rule सर number. सबमिशन ऑफ एम क्या है? Ritik, yes, please. सबमिशन ऑफ एम क्या है सर? वो Summation of m M about क्या any है? point. About any point. ठीक है. Summation of moment about any point is equal to 0. Okay, now I need to check कि कौन third lecture है, तो who is aware and who is sleeping. Okay, let me call any roll number 3. Yes, sir. अच्छा, Praveen, you are there, roll number 3. Okay. Yeah. Tell me what conditions you have seen. What are the conditions required for the so that the system can come into the equilibrium condition? Just tell me that condition. So it needs stable forces. Stable forces. No, वो तो सब छोड़ दो, वो इन जनरल लैंग्वेज छोड़ दो. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग को क्या बोलना है? Engineering. What kind of forces should be 0? What kind of summation of moment should be 0? Giving you hint. Just now we have discussed, na? अभी तक बताया नहीं ना मैंने. Just it's the first page of slide only. I have not told anything. Okay, sir. है ना? इसका मतलब क्या है प्रवीण? आपने ध्यान नहीं दिया. Yes, sir. Roll number 33. Yes, sir. Atul, acha, you are there. Yes, sir. Okay, tell me the conditions of equilibrium. Just we have studied. Sir, in equilibrium, summation of all vertical forces and horizontal forces must be 0. मतलब summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0, and summation of fz equal to 0, and moment at any point must be 0. Yes. Moment about any point. Any point will be 0. Is 0. Okay. See, I am not going to point any student. Okay, but it will be noted. Huh? See, guys, whenever the lecture is going on, it's not like that कि आपने क्या बोलते हैं, you have just joined the meet and you are doing another things. Okay, playing games and whatever the stuff you may be doing. Okay, but it will not be acceptable. It is noted. Okay, and जो ऊपर टेस्ट भी होता है, असाइनमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, तो in that we can surely identify कि what kind of performance the student is giving. Okay, so be aware. Okay, moving to the next.
So here the things we have already discussed. The same thing, just we have discussed already. So I don't know need to be on the same slide. Okay, this is nothing but a टू फोर्स मेंबर. ये टू फोर्स मेंबर क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लोग जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी आपको देन ओनली आई टेल यू थ्री फोर्स मेंबर सेम. Okay, let me just tell you these three conditions which are required. See, guys, चल छोटा सा एक let me give you some important tip. Whenever there will be a viva, oral exam. Okay, so in that oral exam will be asked what are the conditions of equilibrium. Okay, so in that you have to just tell the three conditions equilibrium. Just we have to discuss, and after that the examiner may ask you the questions regarding equilibrium, like what are the different types of equilibrium. Okay, so it's I hope you are getting the clear idea through the three diagrams given. Okay, let me just move it. Okay, guys, see, stable equilibrium means what? Initially the body is you can see it's in equilibrium. Okay, and if you are trying to displace it, if you are trying to displace it slightly, still it restores to its original position. Okay, मतलब क्या, ये stable equilibrium का ये वाला केस देखो, you just see this case. Okay, ये what is happening in this case? Just a minute. Okay, what is happening in this case? Here, if you will try to displace this, अगर आपने इसको डिस्प्लेस करने के लिए ट्राई किया तो ना, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया आपने, एकदम स्लाइट फोर्स अप्लाई किया, गाइस किया. अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? इफ यू ट्राई टू अप्लाई मोर फोर्स, तो ऑब्वियसली इट विल डिस्प्लेस एट अनदर प्लेस. वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. अप्लाई करें, जस्ट अ मिनट, अभी आएगा सही. आई होप अभी सही वॉइस आ रहा है. यस सर. How is the voice now? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. Okay, okay, हाँ. So if you're trying to just displace with a slight displacement, so what will happen? थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया है ना, तो क्या हो जाएगा? वो डिस्टर्ब होगा. देन अगेन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके, ओरिजिनल पोजीशन को ग्रैब कर लेगा. इट इज नथिंग बट द स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड व्हाट इज नथिंग बट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? there is a surface like it's nothing but the कौन सा टाइप का सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस इज देयर. ओके, ये कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा? ओके, इफ पर्टिकुलर बॉडी इज देयर, नथिंग बट द सिलेंडर केप्ट. ओके, या फिर स्फीयर बोलो, सिलेंडर बोलो, इज केप्ट ऑन द कॉन्वेक्स. ओके, ये कॉन्वेक्स के क्या, यहाँ पे अगर उसको एग्जैक्टली हम लोग पुट करते हैं ना, ओके, तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. मतलब यहाँ पे वो बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने we will try to apply some little force on that. So थोड़ा सा फोर्स भी उसको अप्लाई कर दिया तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, देन इट इज कॉल्ड एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, एंड थर्ड वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे उसको डिस्प्लेस करने के लिए कुछ फोर्स भी अप्लाई किया. ये वाले डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ये वाले डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इन दिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो surely it will displace. But after that displacement, it will grab a new equilibrium condition which is quite similar with the previous one. Okay, which will be obviously similar with the previous one. मतलब ये क्या होगा? ये थोड़ा मूव होके यहाँ पे जाएगा. Okay, it will come at this point. लेकिन the next condition obviously will be the same with the previous condition. Okay. Now, okay, I hope you got these three types: stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. Third type is called as a neutral equilibrium. Okay, these three types you have to just keep in your
कीप इट इन योर माइंड एंड व्हेन द एग्जामिनर विल बी आस्क यू, ओके, थोड़ा रिवाइज भी करते रहना है, ओके, तो एग्जामिनर विल बी आस्क, तो ऑन दैट टाइम यू टू आंसर इट करेक्टली. Now, what is the free body diagram and all? So, we will just have a practical look for that. Practical ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, तो तभी हम लोग इसको क्लैरिटी अचीव करेंगे. Okay, now let me tell you, every student, see what we have to consider over here. Now, see here, guys. Any student want to say something? Okay, fine. So, what we are discussing over here कि there are different types of supports. तो क्या लोड का तो हम लोगों ने टाइप्स थोड़ा शॉर्ट में देख लिया कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के लोड होते हैं. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने भी वाले हैं एकदम अच्छी तरीके से. फिलहाल के लिए जस्ट लेट मी टेल यू गाइस कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस. ओके, मतलब क्या होता है कि इफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज hold here like this, if this component is hold, okay, it's a fixed support. This kind of support is nothing but the fixed support. Okay, ये fixed support है. तो what अभी डायग्राम में तो ऐसे देंगे आपको, लेकिन you have to just work on that. तो okay, आपको उसको 3 कंडीशन अप्लाई करना होता है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, सम ऑफ मोमेंट अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट. तो फॉर दैट यू नीड टू जस्ट ट्रांसफॉर्म दिस. इसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म इनटू एफबीडी. ओके, एफबीडी में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है. तो एफबीडी में क्या होता है, तो in at that point how many forces are existing. Okay, actually that forces are termed as the reactions. Okay, forces को क्या बोलते हैं, it is termed as a reaction. Okay, तो अगर if there is a fixed support, then what kind of reaction should be there? Then should be one horizontal reaction, one vertical reaction, and one anti-clockwise moment will be existing over there. Okay, and one, if there is a hinge support given in the diagram, so instead of that hinge support, you can show there one horizontal force and one vertical force. Nothing but the one horizontal reaction, one vertical reaction. Okay. Now similarly, roller support के लिए क्या होना है? For a roller support, only one vertical reaction is there. Only one. Okay. Reaction कितना है यहाँ पे? 1 है. Okay. यहाँ पे reactions कितने हैं? यहाँ पे reaction 2 है. यहाँ पे reactions कितने हैं? यहाँ पे reactions है 3. Okay. 3 numbers. 2 numbers. Okay, not a 2. It's a 2 numbers. Okay, 1 number. Okay. These are nothing but the number of reactions. ये थोड़ा no need to take a much stress now. Okay, जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो जैसे प्रॉब्लम की वैरायटी गो थ्रू करेंगे, तो ऑब्वियसली ऑन दैट टाइम इट विल कीप इट इन अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे. बस अभी फिलहाल दो चीजें दिमाग में रखो. whenever there is a fixed support, okay, where fixed support is there, so there are 3 reactions. Okay, whenever the hinge support, 2 reactions. Okay, whenever the roller support, there are only 1 reaction. 1 reaction. Okay, देखो आपको और एक मैं हिंट दे देता हूँ. देखो मतलब कैसे होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना कम है, ओके, बस वो सुन लो, अगर बाउंसर ज्यादा है तो भूल जाओ. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर उसका कम है तो रिएक्शन ज्यादा रहेंगे. ओके, अभी देखो ये वाला डायग्राम है ना, फिक्स सपोर्ट में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, मतलब वो द मेंबर अटैच विद द वी कैन से वॉल, तो कैन नॉट बी मूव इन एनी डायरेक्शन. एक भी डायरेक्शन में मूव हो नहीं सकता. ओके, तो ऑब्वियसली उसके तीनों डायरेक्शन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गए. तो उसको ऑब्वियसली जो ये आने वाले रिएक्शन आने वाले तीनों डायरेक्शन में आने वाले, देयर शुड बी इट इज हैविंग 3 रिएक्शंस. ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, हिंज सपोर्ट में है ना, इन द हिंज सपोर्ट. ओके, थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो अभी ये जो है ना, ये पर्टिकुलर मेंबर, ये मेंबर है. ओके, सो कैन इट बी मूव इजीली इन अ वर्टिकल डायरेक्शन? नो. कैन इट बी मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नो. ओके, इसको रोटेट कर सकते हैं हम लोग एक ये वाले डायरेक्शन में? नो. ये वाले डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं? नो. ओके, सो दैट्स वाई, तो इसके क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस इसके बढ़ गए. ओके, जितने रेस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे तो उसके रिएक्शन भी बढ़ेंगे. ओके, तो इन शॉर्ट एक्स वाई जेड बोलना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि स्टिल अभी इतना समझ लो कि इसके जो रेस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे तो रिएक्शन बढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्शंस क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे
कम हो गया। ओके, नाउ ये जो पर्टिकुलर मेंबर है, ये मेंबर इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये वाले डायरेक्शन में क्या हो सकता है, इट कैन व्हाट यू कैन से, इट कैन रोटेट लाइक दिस। ओके, इसे इसको रोटेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, और रोटेट बोलो, ऑक्सीलेट बोलो, व्हाटएवर। ओके, इन दिस डायरेक्शन वी कैन जस्ट गिव अ मोशन टू दैट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका यहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन कम कर दिया, मोमेंट का रेस्ट्रिक्शन कम कर दिया, यहाँ से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इज रिड्यूस। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन कम हो गया तो ऑब्वियसली उसके रिएक्शन भी कम हो गए। ओके, नाउ हियर, अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इट कैन oscillate also and it can move in x direction also। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे काफी कम हो गए, तो यहाँ पे आपके रिएक्शन भी कम हो गए। रिएक्शन ओनली वन रिएक्शन इज देयर। ओके, ओके, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने इन शॉर्ट कि उसका अगर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है तो रिएक्शन भी ज्यादा आते हैं, रेस्ट्रिक्शन जैसे कम होने लगते हैं वैसे उसके रिएक्शन भी कम होने लगते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। whenever the particular member is tied with the cable। okay, एक आधा member है यहाँ पे देखो, it is tied with the cable। okay, केबल से अटैच होता है एक आधा मेंबर डायग्राम में। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस दे मे बी टेल यू लाइक दिस आल्सो। ओके, तो व्हाट कैन बी अ रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस, फॉर द टेंशन। ओके, ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो केबल रहेगा, द केबल, here is nothing but the cable। okay, that cable will apply a tensile force on this member। ये जो मेंबर है ना, ये मेंबर के ऊपर क्या करेगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये क्या करेगा, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेगा। नाउ यू चेक इट हियर गाइस। ओके, अभी आपको मैं थोड़ा सा और एक यहाँ पे डिटेल में जाता हूँ। ये जो केबल होगा ना आपका, ओके, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यू टू जस्ट अप्लाई दिस मार्क। ओके, ये डबल एरो वाला मार्क आपको यहाँ पे शो करना होता है। ओके, और इसको यहाँ से सेपरेट कर लेना। ओके, यहाँ से उसको सेपरेट कर दिया तो व्हाट हैपन एक्चुअली, कि ये जो होगा ना, तो ऑब्वियसली ये जो मेंबर को कौन सी डायरेक्शन में खींच रहा है, ये वाला डायरेक्शन में खींच रहा है। ओके, तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन, यहाँ से आपको उसका डायरेक्शन क्लियर हो गया है ना। तो इट इज शोइंग अस कि उसका डायरेक्शन कौन सा, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, हाँ, तो गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी हम लोग को सेम साइन अप्लाई करना है, लाइक दिस सेम साइन। यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, चलो ठीक है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये लाइक दिस साइन वी हैव टू अप्लाई ओवर हियर। ओके, तो क्या होगा फाइनली, ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर बोलो, स्फीयर बोलो, तो इसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स ऐसे अप्लाई होगा। ओके, वर्टिकल फोर्स नथिंग बट इट इज नथिंग बट द टेंशन। ओके, टेंसाइल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दैट मेंबर। ओके, हाँ, तो उसका वेट वगैरह अप्लाई होगा, दैट द अनदर थिंग, उसका वेट भी रहेगा ना ऑब्वियसली। ओके, दैट इज द अनदर थिंग। ओके, तो यहाँ पे जो हम थिंग्स वी आर डूइंग हियर ना, इट इज नथिंग बट द कन्वर्टिंग डायग्राम into FBD। okay, okay, sorry for the interruptions। now see guys, what we are discussing here कि we have what we have done कि अपना हम लोगों ने क्या किया, डायग्राम को एफबीडी में कन्वर्ट किया। ओके, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल में आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिलेगा इतना, यहाँ पे अगेंस्ट नो नीड टू टेक अ मच स्ट्रेस।
whenever the short link will be there, then how to deal with that. Whenever the smooth surface will be there, how to deal with that. Okay, sir, rough surface है तो क्या करना है, knife edge है तो क्या करना है. Okay, here you have to just keep one thing in your mind. Whenever the different types of members are there, जैसे कि short link हो गया, smooth surface हो गया, rough surface हो गया, knife edge हो गया, for that you have to just show the particular type of reactions over there. Okay, particular type का reactions knife edge के लिए like this. Okay, rough surface के लिए like this. Okay, this is for knife edge and rough surface के लिए आपको एक horizontal frictional force शो करना होता है, vertical reaction शो करनी होती है. स्मूथ सरफेस के लिए जो सरफेस पे टच हो रहा है तो सरफेस को परपेंडिकुलर, ये सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक फोर्स शो करना होता है. ओके, ये होता है उसका रिएक्शन. ओके, ये सरफेस जो है, ये सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक फोर्स शो करना होता है, दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन. ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर व्हाट वी कैन से इन्वॉल्विंग इन द टॉपिक. अभी हम लोग एक नेक्स्ट टर्म जो सीखने वाले हैं, इट इज okay, it is the another presentation, guys. Wait. We are going to learn the equilibrium. Equilibrium में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि Lami's theorem क्या होता है. Okay. In short, let me tell you guys, it is nothing but the, we're having 20 minutes. Okay. It is nothing but the Lami's theorem whenever the three forces are acting in a system. Okay. And that three forces should be a concurrent force. Okay. That the force system must be a concurrent force system. So what will happen? And the system is in equilibrium. Three forces in equilibrium. Okay. Then what happen? The ratio of any of the forces to the ratio of the forces to the sine of the angle between the between the remaining two forces is the same. Okay. इसका मतलब क्या है कि अभी I hope I think I can understand. Someone may have not got the clear idea about this. एक सिंपल बात हम यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इन द प्रूफ. ओके, सी है गाइस. ओके, अभी क्या हो रहा है कि इफ इफ इन दिस डायग्राम कि द फोर्स पी इज एक्टिंग ओवर हियर, इफ फोर्स पी यहाँ पे एक्ट हो रहा है एंड फोर्स क्यू यहाँ पे एक्ट हो रहा है, क्यू फोर्स आर यहाँ पे एक्ट हो रहा है. ओके, एंड इन बिटवीन दैट द एंगल इज गिवन, आर एंगल बिटवीन आर एंड क्यू इज गिवन अल्फा, एंगल बिटवीन P and R is given beta, and angle between P and Q given is the gamma. Okay, तो देखो अभी ये let me just come to directly at the end point. यहाँ पे mention क्या किया guys? Yeah, what the mention over here कि P upon sin alpha. Okay, what the mention over here कि at the end the P upon sin alpha is equal to Q upon sin beta is equal to R upon sin gamma. इसका मतलब क्या है? देखो the P force is here ना. ओके, P force के बारे में देखें. देखो बच्चों, जो चीज मैं भी आपको बात बोलने जा रहा हूँ ना, तो अच्छी तरीके से नोट करना है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना. ओके, फोर्स P के लिए एंगल कौन सा लेना है? द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस. रिमेनिंग टू फोर्सेस कौन सा है? आर एंड क्यू. ओके, आर एंड क्यू के बीच में एंगल कौन सा है? अल्फा. ओके, आर एंड क्यू के बीच में एंगल इज देयर अल्फा. ओके, तो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए P अपॉन साइन अल्फा. ओके, फर्स्ट वाला लिख दिया हम लोगों ने. सॉरी गाइस, it is P upon sin alpha. Here we have written it. ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया P upon sin alpha. Now we have to take care of force Q. Okay,
फोर्स क्यू के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे सोच रहे हैं। तो फॉर फोर्स क्यू ऑल्सो we have to think कि what are the remaining two forces P and R. For force Q, what are the remaining two forces P and R? P and R के बीच में एंगल कौन सा है? बीटा. Okay, तो what we are supposed to write over here? Q upon sin beta. Okay, Q upon sin beta. Okay, now next R, force R. Okay, for the force R, what are the remaining two forces P and Q? Okay, the angle between P and Q is gamma, angle gamma. Okay, so for that we have to write r upon sin gamma. Okay, बाकी यहाँ पे जो डेरिवेशन जो दिया है, ओके डेरिवेशन है, ओके इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. आई होप कि मैं आपको ये थोड़ा होमवर्क के लिए देता हूँ. ओके, थोड़ा गो थ्रू कर लो तो इजी टू अंडरस्टैंड, समझ जाएगा आपको. सिंपली क्या पी पी प्लस क्यू प्लस आर इज नथिंग बट द जीरो बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो आपको थोड़ा एक फंडा यहाँ पे अप्लाई करके थोड़ा हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, गो थ्रू करेगा. Student have to do the brainstorming from for this. Okay, whatever the things you learned till the 12th you have to apply over here. Okay, किसी स्टूडेंट को तो अभी समझ में आ गया रहेगा कि क्या यहाँ पे करना है, तो ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग. ओके, चलो ठीक है. आई विल आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर रैंडमली टू एनी स्टूडेंट. ओके, तो ही हैव टू एक्सप्लेन कि सर ये इस तरीके से इसका प्रूव किया जा सकता है. हाँ, तो एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू ओनली इट इज देयर. स्टिल आई विल गिव सम टाइम टू एवरीवन. ओके, तो एट द एंड वी हैव टू जस्ट गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस. ओके, ये समझ में आ गया सब लोग को क्या करना है. दैट पर्टिकुलर फोर्स एंड P, फॉर P वी हैव टू कंसीडर द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्स. ओके, नथिंग बट QR के बीच में कौन सा एंगल है? अल्फा. ओके, Q के लिए PR के बीच में कौन सा एंगल है? बीटा. R के लिए PQ के बीच में कितना एंगल है? गैमा. ओके, तो इन दिस वे ओनली वी हैव टू राइट द इक्वेशन. Okay, coming to the next point, there are certain limitations for the Lami's theorem. Obviously, whenever the numericals will be started, we will be getting idea about that. Okay, now just we are starting with the example over here. Okay, now see, so instead of going through the solution directly, let me tell you how we have to deal with that. Okay, the same example is here in front of you, right? एक शॉर्ट में ना, अभी आई एम गिविंग 30 सेकंड में ये डायग्राम है ना, नोट कर लो, फ्री हैंड स्केच बना लो. ओके, 30 सेकंड में ये डायग्राम के लिए फ्री हैंड स्केच बना लो. हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? सर हो गया. हाँ सर. यस सर. गाइस, हम लोग कितना, हाउ मेनी टाइम्स से डिस्कनेक्टेड थे? एक्चुअली आई गो ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग, देन आई फाइंड दैट नहीं समथिंग सर, इज मिसिंग. डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था. यस अतुल, प्लीज टेल मी. डिस्कनेक्ट आ नहीं रहा हुआ था था. सर, वॉइस आ रहा था. आ रहा था आवाज. आ रहा था सर सर. आपने डायग्राम ड्रॉ करने बोला था बस तभी. वेट, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली. हाँ बोलो, कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग? सर डिस्कनेक्ट नहीं हुई. कनेक्टेड थे. हेलो, सर आपने डायग्राम ड्रॉ करने बोला था बस, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था.
ओके ऑडिबल ना? Yes, sir. अच्छे से नहीं आ रहा सर आवाज। क्लियर नहीं आ रहा आवाज? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी सही हो गया सर। अभी ठीक है? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके ओके ठीक है। तो जो लैमिस थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया था ऑन द टाइम, वेरी देयर? यस सर। ओके ओके देन एट विच मोमेंट, चलो ठीक है। इसका मैंने डायग्राम बनाने के लिए बोला था आपको गाइस। Yes, sir. You got it na? See, let me just tell you कि whenever the system is, you are given the three forces, सर वॉइस नहीं आ रहा। listen here guys, hello, Yes, sir. if there are three Yes, forces sir. are given in the system P Q R, ये तो सब लोग को समझ में आ गया ना up to this? Yes. यस सर। ओके ओके चलो ठीक है, गुड गुड गुड। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग को प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या करना है हम लोग को। आई एम गेटिंग अ लिटिल लैग ओवर हियर। You got the problem on the screen? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay. Now, guys, what you're supposed to do for this? The diagram given here. Okay, for this diagram. Okay, आपको क्या करना है? You have to just diagram as it is draw करना। diagram फटक से as it is draw कर लो। Okay, already draw किया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay. sir. मतलब till that time I was audible to you. Okay. यस सर। ओके गुड 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 चलो ठीक। हाँ, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम। देखो पहले हम लोग प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। ओके, इन द प्रॉब्लम इट इज आस्क्ड दैट इफ द सिलेंडर बी, ओके वेयर इज द सिलेंडर बी, इट्स हियर। ओके, ये जो पूरा सिलेंडर बी है, ओके, हैविंग अ डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी मतलब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि डब्ल्यू मतलब इट्स वेट इज गिवन। ओके, डब्ल्यू बी इज 1000। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। It is the weight of that cylinder, okay, and the diameter is 40 centimeter. Hence, by cable AB is equal to 40 centimeter, okay, against a smooth wall. Find out the reaction at C and tension AB. Okay, tension actually let me tell you guys कि TAB it's not a tab, okay, इसका मतलब क्या होता है? Actually there is certain, what you can say, kind of typing error. It should be written as a TAB. Okay, what does this mean? It means that tension in link AB. Okay, link AB bolo, cable AB bolo, what the word they have used over here, hangs by a cable. Okay, so AB is nothing but the cable. Okay, AB क्या है बेटा? AB is nothing but the cable. Okay, तो केबल AB में कितना टेंशन है वो फाइंड आउट करना है, प्लस you have to find out the reaction at point C. Okay, a reaction at the point C, you have to just find out. Point C is where it is at here. Okay, point C यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये point C पे कितना रिएक्शन आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड AB में कितना टेंशन रहेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। नाउ गाइस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, we are just converting this diagram into a free body diagram. Now see guys, let me just take a ready-made circle which is available here. I hope I will get it easily. Okay, fine. Now see here guys, let me put it here only. Okay, अभी देखो क्या करना है। The same circle हम लोग को फिर से ड्रॉ करना होता है। It's nothing but the B. Okay. Now you have to tell me, पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले से मतलब वी आर जस्ट फॉलोइंग द होल
equation given in the whole the statements given in the example. Okay, WB का वैल्यू कितना दिया बेटा, यहाँ पे चेक करो WB का वैल्यू कितना दिया, WB का वैल्यू दिया 1000 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इट्स नथिंग बट द वेट द सिलेंडर, ये दिया है बेटा, यहाँ पे सिलेंडर का वेट दिया। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, तो हम लोग को क्या करना है, इसका वेट ऑब्वियसली कहाँ पे एक्ट होगा रे बेटा, वेट will be acting at a centroid. Fine, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो ये सेंटर्ड होगा, उसका ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर्ड होगा उसका सेंटर में। ओके, अभी यहाँ पे कोई 4r/3π वगैरह कुछ बोलूँ मत। ओके ओके, यहाँ पे उसका वेट एक्ट होगा, इट इज नथिंग बट द, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, तो 1000 न्यूटन। ओके, नाउ सी गाइस। ओके, तो पहले हम लोग को एग्जिस्टिंग फोर्सेस जो सामने सामने दिख रही है ना, वो रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद में हम लोग को रिएक्शन देखना है। पहले गिवन फोर्स ना गाइस, पहले गिवन फोर्स क्या क्या कंसीडर करना होता है, उसके बाद में हम लोग को रिएक्शन कंसीडर करना होता है। ओके, ये गिवन फोर्स हम लोगों ने राइट डाउन कर दिया, उसके बाद में हम लोग को लिखना है रिएक्शन। अभी रिएक्शन यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये केबल में रिएक्शन आएगा, reaction in the cable and reaction at the smooth surface. Okay, reaction at the smooth surface, कि यहाँ पे रिएक्शन हम लोग को कंसीडर करना है, यहाँ पे रिएक्शन कंसीडर करना है, यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा वो देखना है, यहाँ पे रिएक्शन कितना आएगा वो देखना है। ओके, रिएक्शन नथिंग बट व्हाट, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था, हियर वी हैव सीन कि केबल है, तो केबल का टेंशन कैसे, केबल का व्हाट एवर द फोर्स इज देयर, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन दिस वे। ओके, स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस के लिए क्या करना है, गेटिंग इट ना गाइस, तो फ्रॉम दिस चार्ट ओनली वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वहां पे कौन से टाइप का रिएक्शन आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे चेक करो कि अभी देखो ये केबल है, तो केबल में क्या ऐसे टी से रिप्रेजेंट करना है, स्मूथ सरफेस है तो बस डायरेक्टली वो सरफेस को परपेंडिकुलर, गाइस जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट, वो सरफेस को परपेंडिकुलर आपका रिएक्शन रहेगा। ओके, परपेंडिकुलर टू द स्मूथ सरफेस, गेटिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, Yes, sir. sir. where it is, it's at problem 1. Okay, प्रॉब्लम एक्चुअली सिंपल होता है, इसके प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे, मतलब जो व्हाट यू कैन से, जो अल्जेब्रिकल टर्म्स है ना वो इजी है, अलजेब्रा वो इजी है। ओके, बस इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो एक बार आपको उसमें पकड़ आ गया, ओके, यू विल बी मास्टर इन दैट, देन आपको कोई भी एग्जांपल इजी लगेगा, ऑब्वियसली इजी लगेगा। ओके, तो ये वाले डायरेक्शन में वो क्या होगा, उसका टेंशन एक्ट होगा, ये टेंशन को क्या शो करेंगे हम लोग, TAB, गेटिंग इट ना, इसको इंक्लाइन लिखना जरूरत नहीं है, तो इट्स नथिंग बट TAB। TAB is not given in the problem, दिया क्या है, टेंशन इन द केबल। No, sir. ओके, it we have been No, asked sir. to find out। No, Okay, sir. join कर No, sir. गुड गुड गुड। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक पुराना वाला फंडा यूज करना है। ओके, पुराना वाला फंडा क्या है अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। नाउ गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, whenever the smooth surface is there, you have to just put a perpendicular to the surface at the point where the at the point of contact में perpendicular surface को put करना, that's it। ओके, perpendicular point of contact कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट C के यहाँ पे point of contact है, here is nothing but the point C, है ना गाइस, पॉइंट C यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, एंड हियर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर व्हाट यू कैन से, आई विल जस्ट राइट अ वर्ड RC, रिएक्शन एट अ पॉइंट C RC। ओके, रिएक्शन एट पॉइंट C RC। ओके, तो हियर आर द थ्री फोर्सेस एग्जिस्टिंग। ओके, RC हो गया, TAB हो गया एंड WB हो गया, बट यहाँ पे भी हम लोग कौन सा फंडा यूज करें, तो हम लोग का एग्जांपल सॉल्व हो सकता है। ओके, देखो जस्ट नाउ वी हैव लर्न अबाउट Resolution of forces. एग्जैक्टली गाइस। ओके, गुड गुड गुड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को सोचना है कि व्हाट एवर द अवेलेबल विद अस, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला फंडा यूज करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो फोर्स एक्ट करेगा TAB, वो कितना एंगल में एक्ट करने वाला है, TAB एक्ट करेगा तो कितना एंगल में एक्ट करेगा, उसके लिए आपको चाहिए ट्रिगो।
ओके एंड ट्रिगो के लिए चाहिए आपको ऑल द डायमेंशंस इन द ट्रायंगल। ओके अभी ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बन के आ रहा है कौन सा रे बेटा? पॉइंट राइट ए एंगल से रहेगा। राइट एंगल। ओके ये पॉइंट ए वाला, पॉइंट सी वाला और पॉइंट बी वाला, ये ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। ओके तो इसमें ये आपको डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस Yes, नहीं sir. पता लेकिन यू नो द ए बी, ए बी पता है ना हम लोग को। ओके यू नो द ए बी, यू नो द बी सी ऑल्सो, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिया है, उसका डायमीटर दिया है, तो बीसी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ कितना दिया है? 40 40 सेंटीमीटर। 40 ओके तो कैन यू गेट दिस एंगल हियर? ओके कैन आई राइट इट एज अल्फा? अल्फा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ओके आई थिंक थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है। ओके दिस एंगल इज नथिंग बट द अल्फा। ओके ये एंगल हम लोग को कितना अल्फा एंगल है यहाँ पे, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अल्फा एंगल कैसे मिलेगा हम लोग को गाइस? अल्फा एंगल हाउ वी कैन गेट इट? यू नो द साइन थीटा अप्लाई साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो मिलेगा, राइट। तो साइन मतलब अभी साइन इनवर्स करना पड़ेगा, राइट। साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? साइन नहीं रे, कॉस लगाना पड़ेगा कॉस ना। देना पड़ेगा, कॉस लगाना पड़ेगा सर। हाँ अभी आपको ये सामने वाला साइड थोड़ी पता है यहाँ पे कितना है ना। यू डोंट नो द एसी, यू नो द बीसी। ओके तो कॉस इनवर्स करेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट दिया? 20/40 एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर हियर? देखो एग्जांपल आप ही सॉल्व करने वाले 60 पूरा। ओके चलो ठीक है, अल्फा वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। 60 अल्फा का वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर? चलो लेट्स गो अहेड नाउ गाइस। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मेथड है आप लोग ट्राई करने वाले, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला। तो चलो ठीक है आप लोग मत ट्राई करो फिर, मैं आपको डायरेक्ट लैमिस थ्योरम बता देता हूँ, बिकॉज अपने पास अभी टाइम कम है, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो मैं लैमिस थ्योरम का यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ। ओके नाउ गाइस हम लोगों ने जो मैं ऑलरेडी टोल्ड कि पुराना वाला फंडा हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। दैट पुराना वाला फंडा इज नथिंग बट द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स मतलब क्या? व्हेनेवर द particular force is acting, so we can shift that force in the same line of action. Okay मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे, this force RC, okay ये RC फोर्स जो है we can just shift it, okay, in the direction like छोड़ो ठीक है। ये आरसी को मैं डिलीट ही कर देता हूँ बेहतर। दिस आरसी कैन बी ट्रांसफर्ड, दिस आरसी कैन बी ट्रांसफर्ड लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके मैं क्या कर देता हूँ उसको, यहाँ पे सी पॉइंट यहाँ पे था ना, तो यहाँ से मैं यहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके तो ये हो गया हमारा फोर्स आरसी। गेटिंग इट गाइस? तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था इट वाज एट हियर आरसी। ओके तो मैंने क्या कर दिया उसको ट्रांसफर यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया। इट इज नथिंग बट द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। ओके तो इसको हम लोग को मैं भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। गेट इट ना डियर? ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ओके तो आरसी को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बिकॉज उसका इफेक्ट तो सेम ही होने वाला है। ओके लेकिन हम लोग को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा देखो गाइस। तो यू आर गेटिंग अ अल्फा एंगल ओवर हियर, ये अल्फा एंगल आपको मिला। ओके ओके ये अल्फा एंगल आप लोग को मिला है। नाउ हियर you can write the Lami's theorem. How you can write it? Okay now see कैसे we are starting with the known force. Okay ये टिप मैं आपको देता हूँ, starting with the known force. Guys you tell me ये तीनों फोर्स में से नोन फोर्स कौन सा है? लास्ट 2 मिनट WB.
इट्स a WB फास्ट. WB ओके 1080. हाँ. ओके. अभी तक तो क्लैरिटी है ना सब लोग को, जो भी मैंने चीजें किया, एवरीवन इज हैविंग द 8000 क्लैरिटी. Newton. Yes, sir. ओके, गुड गुड. ओके, नॉन फोर्सेस, चलो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वैल्यूज मैं जो उसके टर्म्स है वो लिख देता हूँ. WB. ओके, WB रिमेनिंग टू फोर्सेस कौन से? TAB एंड RC, राइट? TAB Yes. एंड RC. ओके, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा? 180 माइनस अल्फा. Yes, sir. ओके, Yes, ये sir. 180. लेट मी टेल यू, क्या लिखना है यहाँ पे? साइन लिखना होता है, कॉस लिखना होता है, tan लिखना होता है? क्या सीखा था हम लोगों ने यहाँ पे? Sine. साइन Sine. साइन Sine. 180 प्लस अल्फा, राइट? माइनस Minus alpha. ओके, अभी रिमेनिंग टू फोर्सेस लिख दो. इससे भी स्टार्ट करेंगे, नो इशू. ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर RC. RC के लिए बोलो रे, क्या लिखना? रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच में एंगल कितना आएगा? दिस इज द 90 डिग्री. Alpha plus Sine. 90. Very good, 90 plus alpha. Okay, and guys, tell me the angle. Uh, tell me the angle taken for the need to take for the TAB. TAB के लिए कौन सा एंगल लेना पड़ेगा हम लोग को? साइन 90. चेक इट, क्लियरली चेक करो अच्छी तरीके से. TAB के लिए डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रहा है. ऑब्वियसली जो फोर्स यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन के आएगा तो 90 डिग्री रहेगा. ओके, साइन 90 ओनली. गेटिंग इट? Yes. नाउ लिसन ऑल ऑफ यू. WB का वैल्यू आपको गिवन है क्या रे बेटा? Yes, sir. Sir. WB यस. ओके, WB का वैल्यू हम लोग को गिवन है. दिस वैल्यू इज गिवन टू यू. ओके, अल्फा का वैल्यू मिल रहा है हम लोग को? हाँ सर. यस Sir. सर ये यहाँ पे भी अल्फा का वैल्यू पता है? यस. ओके, साइन Yes, yes, 90 yes. का वैल्यू हम लोग को पता है. बस अभी अननोन टर्म क्या है यहाँ पे? RC एंड TAB. ओके, तो पहले हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू जस्ट कंसीडर दीज टू. ओके, ये दो कंसीडर करके वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ RC. ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट कंसीडर दीज टू एंड नॉट दीज टू. अच्छा ठीक है, इसको भी कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज फर्स्ट वाला WB and TAB. एंड यस ये वाला. ओके, ये कंसीडर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाला है कौन सा? TAB का. समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में डायरेक्टली आपको इसका कैलकुलेशन लिखना है और इसको सॉल्व कर देना है. RC का वैल्यू, TAB का वैल्यू, फिनिश. ओके गाइस, ये क्लियर हो गया इसका कंसेप्ट? Yes sir. यस सर. ओके, आज के फॉर द टुडेज लेक्चर डोंट टेक, अब ज्यादा होमवर्क भी नहीं दूंगा मैं. ओके, बस थोड़ा कंसेप्ट समझ लो अच्छी तरीके से. एक आध एक्चुअली वी हैव बीन प्लान टू टेक दिस एग्जांपल आल्सो. चलो ठीक है. ओके, फिलहाल के लिए अभी एक एग्जांपल समझ में आ गया ना? दिस एग्जांपल हैव यू गिवन गॉट द क्लैरिटी? Yes, sir. हाँ गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट थिंग इज कन्वर्टिंग द डायग्राम इनटू द FBD. ओके, FBD में अगर आपको डायग्राम कन्वर्ट करना आ गया तो ऑलमोस्ट यू हैव अचीव द सक्सेस 60%. 60% वहां पे आप लोगों ने सक्सेस अचीव कर लिया. ओके, तो ये वाले सम में हम लोगों ने पहले व्हाट वी सपोज टू डू, अल्फा फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये डायग्राम पहले तो FBD. ओके, फर्स्ट टास्क क्या होता है हम लोग का? FBD ड्रॉ करना. ओके, एंड द डेटा रिक्वायर्ड जो है, डेटा रिक्वायर्ड वो फाइंड किया हम लोगों ने इसके लिए. जैसे हम लोग को अल्फा का वैल्यू पता नहीं तो अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे. ओके, तो दोनों ऊपर नीचे स्टेप्स हो जाएंगे तो भी चलेगा. थर्ड स्टेप हम लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम. ओके, तो हम लोग को पता चला कि ये तो वैल्यू नोन है, अल्फा का वैल्यू भी हम लोग को दिया है, बट अननोन टर्म्स आर नथिंग बट द RC एंड TAB. ओके, तो इजीली वी कैन find out the value of RC and TAB.
Okay, with the help of one equation only we are getting these values easily. Okay, RC का वैल्यू मिलेगा, TAB का वैल्यू मिलेगा. Okay guys, got the steps? Okay, इसको ये स्टेप बाय अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है बुक में. जो कंसेप्ट आज सीखे हैं हम लोगों ने, जस्ट मैं प्रेजेंटेशन सबको शेयर करूंगा उसके, तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड. ओके ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Yes, welcome all of you. Bye bye.